Hallelujah. Praise God. We're going to share a small message. Are you excited? Hallelujah. How many people remember that I said that the Lord has given me a word? Hallelujah. Battleground. Are you excited for the battleground? Hallelujah. People are struggling and they don't know where actually the battle is. कुछ रोड पे लड़ रहे हैं, कुछ अपनी सास के साथ लड़ रही है, कोई अपने भाई के साथ लड़ रहा है, कोई किसके साथ लड़ रहा है. But I want to tell you today, actually the battleground. And that message will change your life. If you want to make the notes, you can make the notes because you're going to share this message with 3 people. आपने ये मैसेज 3 लोगों को सुनाना है. Although it's going to be on YouTube, but you need to share this word, very, very simple word. But you're going to share, hallelujah, this word of God with 3 people in your surroundings. Hallelujah. कलाम के हिस्सा में से पढ़ेंगे. Hallelujah. दूसरा करंथियों, hallelujah. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 से. Verse 3 से 6 तक हम पढ़ेंगे. A very, very powerful word of God. If you understand that, it will change your life. Amen. I'm telling you. Amen. Hallelujah. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा. सबने निकाल लिया? और कौन-कौन 3 लोगों को सुनाने के लिए तैयार है? Raise your hands. Come on. Hallelujah. You're going to share it. Hallelujah. Hallelujah. और आपने ये नहीं कहना कि that is the Pastor Kamran's message. This is your message. Okay? This is your revelation. Hallelujah. जब मेरे मुंह से निकल गया, it's yours because I've learned from someone. Hallelujah. Thank you, Jesus. My just clock hits it. Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his, and he changes the times and the season. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those of understanding. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with him. I thank you and praise you, God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of you, for you have made known to us the king's demand. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah. Thank you, Father. और लिखा है, though we walk in the flesh, hallelujah, क्या लिखा है? मेरे साथ पढ़ते रहना. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Hallelujah. आप उर्दू में पढ़े. क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं. जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं. We are living in this body. ठीक है, आगे देखिए. For the weapons of our warfare are not carnal. Carnal का मतलब है दुनियावी, worldly. Hallelujah. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God. Mighty in God for pulling down strongholds. Strongholds. That is called strong man. Hallelujah. Casted down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. That is the point you need to understand. Hallelujah. Knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Hallelujah. And being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. हम एक वर्स को पढ़ेंगे. हालेलुया. यस समीना. 3 से. क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं. हालेलुया. इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं. चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं. और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें. आमीन.
हालेलुया। सो दो अगरचे हम इस जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, तीसरी आयत कहती है दो वी वॉक इन द फ्लैश वी डू नॉट वॉर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। सो कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि आपने जंग लड़ने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये कौन सी जंग की बात कर रहा है? हम जिस्म में हैं, वो कहता है जिस्म से बाहर लड़ाई है, हमारे हथियार जिस्म के नहीं है। व्हाट इज टॉकिंग अबाउट? दैट इज बैटल इन माइंड, battle in your thought. Oh, you have anxiety. Oh, you are depression. Oh, you have diabetes. Doctor saying it is not curable. Oh, you have cancer now. You are going to die. Oh, you have COVID. Oh, these thoughts will tell you you're a failure. These thoughts will tell you जा किसी की बीवी के साथ जना कर। ये थॉट आपको कहेगी जा बाहर जाके प्रोस्टिट्यूट के साथ जना कर। थॉट्स का आना गुनाह नहीं है। मेक अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि दिस इज योर बैटल ग्राउंड, योर माइंड। दिस इज अ बैटल ग्राउंड। ठीक है। फिर कहता है द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर, अपन उर्दू में पढ़े चौथी वर्स। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है। अब ये किले कौन से हैं? ये किले वो हैं जो आपके दिमाग में जगह बना लेते हैं कि तू सिंगल है, यू आर अ लूजर, तू अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं मूव कर सकता। ये करते 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 ओ एंजाइटी, ओ डिप्रेशन, ओ यू फेलियर, ओ पॉवर्टी, ये स्लोली 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 आपके माइंड में इर्द गिर्द किले बना लेते हैं। एवरी वर्ड दैट यू स्पीक हैज अ डेस्टिनेशन। Those words has to go somewhere. मुझे एक दफा खुदाउन ने विजन दिखाई कि यूनिवर्स के अंदर जब हम कोई नेगेटिव वर्ड बोलते हैं तो वो एक गुंजल सा बनना शुरू हो जाता है। मेरे पास अभी कोई चीज नहीं है, जो गुंजल को आप समझते हैं, टैंगल्स जैसे होते हैं। कभी मेरे पास कोई धागा वगैरह नहीं है जैसे। ओके, जस्ट टू I think it's a good example to tell you. Okay. Each time you think आपके ये खुदा ने मुझे यूनिवर्स में पिक्चर दिखाई, ऐसे आपके माइंड के अंदर नेगेटिव चीजें बनना शुरू हो जाती हैं और ये किले बन जाते हैं। They become strongholds. वो चीज मुझे तंग कर रही है, मुझे ये तंग कर रही, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये स्लोली 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 आपको ऐसे कर लेता है। फिर जब आप कलाम को पढ़ते हैं, कलाम में क्या लिखा है? तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। ये कलाम आप पढ़ते हैं, टंग्स में दुआ करते हैं, ये खुलना शुरू हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे, एंड यू सेट बिकम सेट फ्री। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर योर बैटल ग्राउंड इज। कोई लोग बताते नहीं है कि सबको कहते हैं मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने ये सोच लिया। सोचना गुनाह नहीं है, मुंह से अदा कर देना दैट इज अ सिन, एंड दैट वर्ड्स हैज टू गो समवेयर। वो आपकी पोशाक पे आ सकते हैं, किसी की पोशाक पे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं जा सकते हैं। बट आई वांट टू टेल यू you need to understand that where the battleground is. Hallelujah. Amen. और क्या लिखा है? For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God pulling down the strongholds. ठीक है। फिर अब यहां पे वो 5वीं आयत में और इसको खोल रहा है, कह रहा है कास्टिंग डाउन आर्ग्यूमेंट्स। आपके अपने माइंड के अंदर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट्स जब स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लेते हैं, फिर आप अपने हस्बैंड पे जाके गुस्सा निकालती हैं, बिकॉज योर माइंड इज बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। दे बाबा बाबरी मत हो सकी बदौरा। और कहता है आपने उसी टाइम के ऊपर क्या लिखा है? फॉर द व्हाट वेयर इज द कास्टिंग द वर्स 5 से मैं पढ़ रहा हूं, कास्टिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी हाई थिंग दैट exalts against the knowledge of God.
ये उर्दू में पढ़ना स्लोली। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। मसीह का फरमाबरदार। स्लोली दो दो तीन तीन वर्ड पढ़े। ओके। चुनाचे हम तसव्वुरात तसव्वुरात को, जो आपके माइंड में थॉट्स आती हैं, ठीक है, क्या लिखा है, कास्टिंग डाउन आर्गुमेंट्स, वो तसव्वुरात कि आज तूने काजिया को जाके ये बोलना है, आपने कहना नो, मैं क्यों बोलूं, मेरी बहन है, मेरी फेलो बिलीवर है, दैट इज द आर्गुमेंट। आज तूने हस्बैंड अपने को जाके ये कहना है, आपने वो बनते रहते हैं, इट बिकम बैटल ग्राउंड इन योर माइंड। आप पहले जाके, अगर आपने कोई भी गुनाह करना है, आपने पहले अपने माइंड में उसका पूरा प्लान करते हैं, और कई जगह पे फिर आपको शैतान रिग्रेट करता हो, आई शुडंट हैव डन इट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर वर्ड हैज गॉन फ्रॉम योर माउथ। ठीक है, क्या लिखा है, तसव्वुरात को, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को, हर ऊंची चीज को जो खुदा के आगे, क्या लिखा है, हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ। हालेलुया। खुदा का कलाम आपको बताता है कि यू आर माई चाइल्ड, यू आर माई डॉटर, यू आर फॉरगिवन। हालेलुया। और हम कहते हैं खुदा मुझे माफ कर दे, ऐ खुदा मुझे माफ कर दे, हम रिपेंट ही करते जाते हैं, रिपेंट ही कर जाते हैं। खुदा उन कहता है ले भाई मैंने तुझे माफ कर दिया, आगे चल, यू आर फॉरगिवन। इसका यह मतलब नहीं है कि हम फिर गुनाह में जाएं। शैतान आके कानों में बात करता है, यू आर नॉट फॉरगिवन, तेरा वो वाला गुनाह, वो जो तूने अबॉर्शन कराया था ना, वो जो तूने शादी से पहले ये किया था ना, ये जो तूने इस मर्द को ऐसे देख लिया ना, ये जो गंदा ख्वाब तुझे आ गया ना, और आप सुबह उठ के उसके परेशान रहती हो, क्या करूं, ब्रिंग इन टू कैप्टिविटी। कि नहीं, खुदा का कलाम कहता है बरे के खून से मैं आजाद किया गया हूं, मेरी बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। आगे पढ़ें। जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना हर एक देते हैं। थॉट जो आपको के बाइबल के खिलाफ के, ब्रिंग इनटू कैप्टिविटी चर्च। नो, I cannot speak against my pastor. No, I cannot speak against my family, against anyone. शैतान आपको कहेगा उसके खिलाफ बात कर। यही थॉट एक दफा आदम और हवा के दिमाग में भी डाला गया, वो इसको कंट्रोल करते, बिकॉज इज अ प्रिंस ऑफ फेयर। Satan is a prince of fear. He will play with your mind. और वो डाउट की स्पिरिट आपकी जिंदगी में लेके आता है। अगर तू खुदा का बेटा तो फिर इस पत्थर को क्या रोटी बन जा। हेलो, क्या जवाब था? मुझे तुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं खुदा का बेटा हूं। I have a great grace. I have a great grace. Hallelujah. I have a great grace. Hallelujah. कोई भी चीज जो आपको गुनाह करने पे मजबूर करती है, वो चीज जो आपको नेगेटिव सिखाती है, नो, यू आर नॉट प्रॉस्पर, तू कभी प्रॉस्पर नहीं हो सकता। ब्रिंग इनटू कैप्टिविटी, लायर, गो, गेट आउट, आई एम प्रॉस्पर। जो थिंग आपको कहती है नो, कोविड तुझे मार देगा, डायबिटीज तुझे मार देगा, हु केयर्स। कलाम क्या कहता है? कहता है मसीह के ताबे में कर दो, मसीह के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं भाई। हालेलुया। मसीह के मार खाने से मेरी एंजाइटी जाती रही है, मसीह के मार खाने से मसीह की गरीबी मुझे अमीर कर देती है। चर्च अपनी बैटल ग्राउंड को कंट्रोल में ले। चर्च आगे पढ़े जी। मैं कुछ जी। जैसे कुछ लोग जैसे कहते हैं अगर
जैसे कुछ लोग बीमार होते हैं और अगर हम दुआ करते रहते हैं ठीक नहीं होते, और अगर कोई मर जाता है फिर इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्योंकि जो ग्रेट टीचर्स जिनसे आपने सीखा होता है ना, उनकी अच्छी बातें आपको हमेशा याद रहती हैं और जिंदगी के हर एक मौके पे वो आपके काम आती हैं। सो पास्टर पीटर के टीचर है, मैंने आई थिंक मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। सो वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे कहा कि पता नहीं ग्रैंड डॉटर ने या किसी रिलेटिव ने कहा कि तू बीमार हो गया या तू बीमार हो के मर गया और तू इतनी दुआ करता है, दूसरों के लिए करता है, सो फिर तू क्या करेगा? सो वो कहता है कि मेरी कब्र के ऊपर भी लिखा होगा कि उसके मार खाने से मैं चंगा किया गया। हालेलुया। सो ये जिस्म है, इसने एक दिन मर जाना है। इसके लिए ये नहीं है कि एक जिस्म मर गया उसके पीछे हम बाकी सारे जो जिंदा जिस्म है, जो जिंदा जाने हैं, उनको हम भूल जाएं या उसकी वजह से हम अपने खुदा को छोड़ दें। हम ऐसा नहीं कर सकते। आमीन। खुदा का एक खादिम कहता है, 6 वर्ष में लिखा है, and being ready to punish all disobedience when you obedience is fulfilled। उर्दू में पढ़ें 6 प्लीज। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। हालेलुया। हालेलुया। कहता है पनिश द डिसोबीडियंस। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पनिश द डिसोबीडियंस। आमीन। हालेलुया। एक शख्स मुझे फोन करके कहता पास्टर जी मैं रोजे रख रहा हूं तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने कहा बॉडी अपनी को क्या तमीज कर, वरना मैंने 3 दिन की और फास्टिंग में चला जाना है। हालेलुया। एक प्रीचर कहता मैंने फास्टिंग स्टार्ट की, कहते हैं शाम हुई, बॉडी ने तंग करना शुरू कर दिया, रोटी 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 रोटी, खाना 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 दो खाना दो खाना दो। कहता है बॉडी ने तो बड़ा तंग करना शुरू, कहता है मुझे खुशबू भी तंग करने शुरू की। कहता है मैंने कहा चुप कर जा, वरना मैंने जितने डेज हैं उसको मैंने डबल कर देना। कहता आई बीकम रिलैक्स, माइंड को पता चलना शुरू हो गया। हालेलुया। मेरे साथ अंकल सैमुअल बैठे हुए हैं। अंकल सैमुअल को किसी ने, ऑल आई विल इनकरेज यू कि अंकल शेयर दिस स्मॉल थॉट, जो टैबलेट आप कड़वी थी, please come here and share this thing, please. Okay, how the mind plays. Shalom to all of our beloved children and on the platform. मैं एक किताब पढ़ रहा था तो एक जो साइंटिस्ट है वो मुझे बता रहा है कि जो कुछ भी आपके माइंड में है, जो खुदा ने बनाया है, it's all about your mind. If everything you put in your thought, वही होएगा काम। तो वो कहता भी आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। तो उसने मुझे एग्जांपल दिया। तो मुझे एक कभी हे फीवर होता था तो वो एक टैबलेट्स देते हैं, वो बहुत कड़वी होती है, छोटी सी है कड़वी। अगर मैं उसको खा लूं जल्दी से पीस के तो वो जल्दी मेरे काम कर जाती है, वरना वो पेट में जाएगी, कब वो खुरेगी जो तो शुरू हुआ। तो मैंने उससे कहा पे उसने ये करना कि अपने माइंड को कंफ्यूज करना है, अपने टैबलेट लो, दान में रखो और चबो। और मैं कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल स्वीट दिस इज। तो मेरा माइंड उससे वक्त कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो बहुत कड़वी थी। तो आज के दिन भी कभी भी मैं खाता हूँ, चब लेता हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ ओह व्हाट अ वंडरफुल स्वीट। तो मेरे माइंड को वही कंफ्यूजन रहता है कि ये तो इतनी कड़वी है, ये कह रहा है वैसे स्वीट है। सो यही बात है हमारे माइंड में, आपने हमेशा ये रखना है कि यू आर पॉजिटिव, नथिंग टू डू विद नेगेटिवनेस। दैट्स इट। Amen. 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 Hallelujah. So वो कड़वी गोली इनके माइंड ने कहने से, इनके मुंह से कन्फेस करने से, उसके माइंड ने ऐसे एंजाइम्स पैदा कर दिए कि वो मुंह में मीठी होनी शुरू हो गई। एक रिसर्च मैं आपको बताता हूं। एक बंदे को उसने बहुत ज्यादा मर्डर्स किए हुए थे, गुनाह किया हुआ था, उसे मारना चाहते थे। तो उन्होंने उसे कहा कि उन्होंने उसे एक सांप दिखाया। उन्होंने कहा इस सांप से हमने तुझे मारना है, तूने बहुत लोगों को तंग किया, इस सांप से हमने तुझे मारना है। उन्होंने उसे सांप दिखाया, उसके आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ाई और उसे एक छोटी सी कॉमन पिन चुबाई और वो बंदा मर गया, क्योंकि उसके माइंड ने एक्सेप्ट किया था कि ये सांप का जहर है। वो हार्ट अटैक से मर गया। कैन यू बिलीव?
जब आप अपने माइंड में ये बात बना लेते हैं, नो, आई एम हील्ड, आई हैव द पीस ऑफ गॉड, आई एम प्रॉस्परस, हालेलुया। सो बैटल यहां पे आपके स्टार्ट होती है। यहां पे पहली थॉट आपको कहती है, नो, यू वोंट बी एबल टू डू दिस असाइनमेंट, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट दिस डिग्री। हु केयर्स? मुंह से कन्फेस नहीं करना और कहना नो, यू डोंट नो। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, इसीलिए मैं कहता हूं कलाम को बोलें। यसाया 41:10 क्या कहता है? फियर नॉट, फियर नॉट, फॉर आई एम विद यू। हालेलुया। आप अपनी वार्डरोब से दिन ब दिन नए कपड़े लेके आ जाएं। हालेलुया। आप नया से नया कपड़ा ले आए, पैंट कोट ऐसा पहन लें जैसे पास्टर अरुण पहनते हैं, महंगे महंगे से। हालेलुया। पर अगर आपने अपने माइंड को तब्दील नहीं किया, यू विल बी स्ट्रगलिंग, आई एम टेलिंग यू। और रोमन्स 12:1 क्या कहता है? हालेलुया। आप अगर पढ़ दें, डू नॉट बी कॉन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, क्या लिखा है रोमन्स 12:1 में? बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। आमीन। आगे पढ़ें। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। कहते हैं अपने माइंड को रिन्यू करो, रिन्यू योर माइंड। अगर आप एंजाइटी में से गुजर रहे हैं, कलाम क्या कहता है? डू नॉट बी एंशियस। अगर आप फियर में से गुजर रहे हैं, को नो। पहला तिमोथियस उसका 2 तिमोथियस उसका 1:7 क्या कहती है? फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर, बट ऑफ पावर and of love and of a sound mind. क्या लिखा है? 7 2 Timotheus 1:7। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। खुदा ने हमें क्या दिया है? God has not given us the spirit of fear. पहली चीज खुदा ने आपको बार बार बोला है, फियर नॉट, फियर नॉट, फियर नॉट। और शैतान आपकी लाइफ में आके फियर क्रिएट करता। शादी आ गई है, पैसे नहीं ने, की होएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। For God has not given me the spirit of fear. हालेलुया। क्या लिखा है? But of power, खुदा ने अपने रूह की ताकत मुझे दी है। I'm telling you, ये मैसेज आपकी जिंदगी बदल रहा है। If you believe it, don't even think negative. अपनी वार्डरोब को भी चेंज करो और अपने माइंड को भी चेंज करो। हालेलुया। ग्रेट ग्रेस को बोलो। हालेलुया। But of power, love. Love is the key of everything. Love. सबसे पहला लव ये है कि खुदा बाप आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, फिर आपके अंदर स्पिरिट ऑफ लव होनी चाहिए दूसरों के लिए भी। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो आपके माइंड में आएगा, ओ ते आगे बढ़ गई, हाँ हाँ क्रिस्टीना ते आगे बढ़ गई भाई, वी प्रेज गॉड। ओ बढ़ गई, वी प्रेज गॉड। फादर आई थैंक यू, हालेलुया। फादर आई थैंक यू, हालेलुया। कैजिया दी ते वर्शिप ही डिफरेंट हो गई है। हालेलुया। मैं भी कैजिया जैसा बनना है। डोंट बी लाइक कैजिया, बी योरसेल्फ। I'm telling you, you are unique. Say, I'm unique. I am unique. Hallelujah. I am fearless. I am fearless. Hallelujah. बोले I am fearless. I am fearless. Hallelujah. क्योंकि कलाम कहता है जब तू पानियों में से गुजरेगा मैं तेरे साथ होऊंगा। Hallelujah. जब तू आग में से गुजरेगा, take this scripture out. Isaiah 43 निकाले। Hallelujah. Take this. Come on church. Are you excited? Hallelujah. Hallelujah. Next time when things are changing, कोई चीज evil spirit आपको कह रही है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, go, I have the mind of Christ.
Hallelujah. Say after me, I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. My body is the temple of Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. And the Spirit which raised Jesus Christ from the dead And the Spirit which raised Jesus Christ from the dead is living inside me. is living inside me. Hallelujah. Hallelujah. मैं चाहता हूं कोई पढ़ ले. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. First three verses. Hallelujah. 43. और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, Praise God. और शोले तुझे ना जलाएंगे, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा नजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिदिया को मिस्र से और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। आमीन। पानी ते हवावां यसु, हुक्म तेरा मन दे। हालेलुया। हालेलुया। ये पानी, ये हवाएं हमारे खुदा का हुक्म मांगते हैं। हालेलुया। And we have the Holy Spirit. Amen. Confess. Say, I have the Holy Spirit. I have the Holy Spirit, And I can do all things through Christ. and I can do all things through Christ. हालेलुया। Hallelujah. जब तू पानियों में से गुजरेगा, हालेलुया, हालेलुया, हमारा खुदा कहता है पानियों पे चलो। हालेलुया। पानी हमारे लिए रास्ता छोड़ते हैं। Amen. हालेलुया। आग हो, हालेलुया, खुदा का बेटा आग में आ जाता है, आग की नेचर बदल जाती है। हालेलुया। तू सैलाबों में से गुजरेगा, मैं तेरा खुदा मेरे साथ होऊंगा। मैं आज आपको एक वर्स देना चाहता हूं। write this verse in your memory, in your system, in your battleground. This is a weapon. हम क्या कितनी दफा हम कहते हैं, no weapon formed against you shall prosper. हालेलुया। ये वेपन्स हैं जो शैतान लस्ट की सूरत में, पॉवर्टी की सूरत में, हालेलुया, सिन की सूरत में आपके माइंड में थ्रो करता है। किसने कहा कि मैं हील नहीं हो सकता? आई एम हील्ड, क्योंकि कलाम कहता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें यशायाह 46। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, Thank you, Jesus. हालेलुया। स्लोली हम इस वर्स को वर्स 3 से पढ़ेंगे और इसके हाफ पार्ट को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। Oh, listen to me, Kamran Peter. Hallelujah, hallelujah. And all the remnant of the house of Israel. Amen. Hallelujah. खुदा मुझसे कलाम कर रहा है। The Lord is speaking to you. Hallelujah. Who have been upheld by me from birth. Hallelujah. उर्दू में पढ़ना। ए समीना पीटर के घराने और ए इस्राएल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको बातन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, Hallelujah. मेरी सुनो। Hallelujah. Who have been carried from the womb. जिसने माँ के पेट से मुझे चुना। Hallelujah. Hallelujah. Amen. खुदावन की आंख आपके ऊपर है। चर्च, आई एम टेलिंग यू। हालेलुया। कहते हैं even to your old age I am he. Amen. हालेलुया। Amen. तेरे बुजुर्ग होने तक मैं वही खुदा हूं, मैं ला तब्दील खुदा हूं, मैं बदलता नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है, मैं तुम्हारे बढ़ापे तक वही हूँ और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। Oh Jesus, हालेलुया। 46 verse 4. Hallelujah. Even to your old age I am he. Amen. Hallelujah. और फिर कहता है and even to gray hairs. Hallelujah. I will carry you. इतना बड़ा खुदा कहता है मैं तुझे हाथों पे उठा लूंगा। और वो एक कान में फूंक मारता है और आप कहते हो पास्टर जी की हो गया। डोंट वरी,
I'm telling you. ये खुदा का कलाम आपको कह रहा है. Even to gray hairs I will carry you. I have made. Hallelujah. क्या लिखा? I have made and I will bear. Even I will carry and I will deliver you. Oh God. उर्दू में पढ़ें वर्स 4. मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूंगा, मैं ही लिए चलूंगा और रहाई दूंगा. Amen. 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 तो हम we coming to the point. 2 Corinthians chapter 10. Hallelujah. Verse 3. For though we walk in the flesh. Hallelujah. अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं. Hallelujah. We do not war according to the flesh. जिस्म कमजोर है. जिस्म बहुत कुछ कहता है. आज शराब भी पी ले, आज सिगरेट भी पी ले, आज ये वाली मूवी भी देख ले, आज ये वाला काम भी कर ले. जिस्म को क्या, बैठ जा वरना मैं फास्टिंग में जा रहा हूं. चुप करके बैठ जा. हालेलुया. 2 Corinthians chapter verse 10 verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal. वो वर्ल्डली नहीं है. वो है तू शाबारी बात हाले बे थोरो बो खोरो बात हाली रेखे में थोरो बाबा सलाबिन थोरबा. वेपन्स तीर निकलते जा रहे हैं. खोनी मात हाले बिन दारा बाबा सलोबिन थोरबा. नया वेपन चला. The Lord is my shepherd. एक और वेपन, fear not for I am with you. कलाम सही, इस पत्थर को बोल के रोटी बन जा. इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा. That is the जवाब. That is the answer. कौन कहता है कि तू भांज रहेगा? No. खुदावन कहता है मैं तुझे बच्चों वाली बनाऊंगा. I'm the same God who will carry you. Hallelujah. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down the strongholds. Amen. Bind every strong man from your life. Every spirit of lust, say, go away. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Casting down arguments. हम बहुत जल्दी arguments करते हैं. हम accept नहीं करते. Yes, I made a mistake. I'm sorry. Oh, sorry. हम कहते हैं नहीं मैं नहीं कीता. उन्हें कीता सी अंजनी. Church, you are blessed. Amen. So where is the battleground? Is it outside? Hallelujah. It's in your mind. क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता. Hallelujah. और कलाम में लिखा है, the spirit searches every deep things of God. आप अपने माइंड को जो दिखाओगे, वो माइंड आपके लिए वैसा करना शुरू कर देगा. दुआ करते हैं. हालेलुया. आज से बिलीव करें कि यू आर प्रॉस्परस. I am prosperous. I am prosperous. I am prosperous. I am healed. I am totally healed. I am completely healed. Father, those who are going through some battles in mind, Father God, I break every stronghold in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Biraman talayashna, muchkarest bia, lami labalta, kurmatile, kudra baba sire, mendra basaki mino shukur damasta fira mantara. Sika mantora basaka mantoko basaka mantira, reke mentora baba sale mentora bastia. Every battle in your mind, every spirit of lust, every spirit of addiction, every spirit of poverty, I command you, leave this mind, leave this mind. I said, leave this mind. I said, leave this mind in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Put your right hand on your head and repeat after me. I have the mind of the Lord Jesus Christ. I have the mind of the Lord Jesus Christ. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. And the Spirit which raised Jesus Christ from the dead
And the Spirit that which raised Jesus Christ from the dead is living inside me. is living inside me. I'm unstoppable. I am unstoppable. I am fearless. I am fearless. I'm prosperous. I am prosperous. In the mighty name of Jesus. I am In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Let's say the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, makes you complete in every good work to do his will, working in you what is well-pleasing in his sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Shalom, 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 shalom. in Jesus' mighty name. Amen.